नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर में तेज धूप और बढ़ती से लोग परेशान। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में दलित संगठनों ने की प्रेस मीट। कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी की महिला उम्मीदवार सिर्फ खाना बना सकती है। डीकेएस ने बयान की निंदा की। सीएम सचिवों का फर्जी पत्र बनाया, मामला दर्ज। अमित शाह कल कर्नाटक में अपने दिन भर के कार्यक्रम के दौरान रोड शो करेंगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर जिले में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तेज धूप और बढ़ता पारा लोगों को परेशान कर रहा है। हल्की मार्च का माह में मौसम अवसाद रहा, लेकिन मार्च के आखिरी सप्ताह से गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। आईएमडी द्वारा उत्तर कर्नाटक में हीट वेव की चेतावनी दी गई थी, जिसके चलते बेल्लारी, रायचूर, बीजापुर और गुलबर्गा में तापमान अधिक रहने के समाचार हैं। बीदर में भी तापमान 29 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। अनुमान है, लोगों का कहना है कि कम बारिश के कारण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस माह में आने वाले अंबेडकर जयंती की तैयारियों के लिए एक समिति गठित की गई है। आज समिति के पदाधिकारियों ने बीदर शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जयंती के संबंध में जानकारी साझा की है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ಅವರ 133ನೇಯ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರುಗಳು ಕೂತಿ ಒಂದು 2.5-3 ತಾಸು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಚರ್ಚೆ ಭಾಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 30-35 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಹೋರಾಟಗಾರರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದರು. ಹೋದ ವರ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 100% ಯುವಕರ ಪಡೆ ಒಂದು ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಡಾಂಗೆ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ್ ಜನವಾಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ಕರೆದಾಗ ಸುಮಾರು ಹಳ್ಳಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಲೋಕಲ್ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಜನರು ಲೋಕಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈರ್ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸಭೆಗೆ. ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಮಿತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಟವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಚಾಚುವಂಥದ್ದು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜಯಂತಿಗೆ ಚಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಗುತ್ತೇದಾರರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ನೌಕರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರ ಕಡೆನೂ ದುಡ್ಡು ಕೇಳದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹನಿ ಕೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಅನ್ನಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೈನಾದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ PWDಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಂಡಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಗರಸಭೆಯವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ತಗೋತಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಪಾಠ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ಏನಪ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಉಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಲು ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಸಮಾಜದ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು, ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಸಾರಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಭೆ ಜರುಗಿಸಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಓಣೆಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ 2-3 ಜನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कांग्रेस के एक विधायक की महिलाओं पर लैंगिक टिप्पणी से विवाद पैदा हो गया है, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार को कड़े शब्दों में बयान जारी करना पड़ा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और दावणगेरे दक्षिण 92 वर्षीय विधायक शामनूर शिवशंकरप्पा ने शुक्रवार 29 मार्च को दावणगेरे लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने दावणगेरे में एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि गायत्री चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है, पहले उन्हें दावणगेरे की समस्याओं को समझने दीजिए। हमने कांग्रेस क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, बात करना आना एक बात है, लेकिन वे केवल रसोई में खाना बनाना जानते हैं। शिवशंकरप्पा की टिप्पणी से विवाद पैदा हो गया और भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि गायत्री सिद्धेश्वर ने भी कांग्रेस नेता की आलोचना की। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल जो 2020 में भाजपा में शामिल हुई, उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की, जब मैंने खेल के मैदान पर भारत के लिए पदक जीते तो कांग्रेस पार्टी पसंद करती कि मुझे क्या करना चाहिए था। शिवशंकरप्पा की टिप्पणी के एक दिन बाद पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया, मैं ऐसे किसी भी बयान की कड़ी निंदा करता हूं जिसमें दूर दूर तक किसी की ओर से लिंग भेद और स्त्री द्वेष की बू आती है। नकली सरकारी आदेशों का प्रसार एक बढ़ती चिंता का विषय बन गया है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के नाम वाले फर्जी दस्तावेज बड़े पैमाने पर प्रसारित हो रहे हैं। विधानसौदा पुलिस ने इस संबंध में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए। ये नकली आदेश कथित तौर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्य सचिवों द्वारा जारी किए गए हैं। अपराधियों ने प्रामाणिकता की आड़ में वित्त और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे विभागों में नकली आदेश प्रतियां प्रसारित की है। सत्यापन करने पर यह पता चला कि ये दस्तावेज वास्तव में फर्जी थे, जिसके बाद शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया। एक और मुख्यमंत्री सचिवों का फर्जी पत्र बनाया गया। दर्ज किए गए मामले में कथित तौर पर वक्फ बोर्ड सचिव द्वारा जारी किए गए फर्जी अनुबंध आदेश शामिल है। आरोपी ने दुर्बलापुर विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक कॉलोनी के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कथित तौर पर अल्पसंख्यक कल्याण सचिव द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेशों सहित फर्जी सरकारी आदेशों के जरिए अनुबंध सुरक्षित करने की मांग की। इसके अलावा वक्फ बोर्ड सचिव नागराज को गलत तरीके से 4 करोड़ का ठेका देने का फर्जी आदेश भी सामने आया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह कर्नाटक में कई दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें मंगलवार को होने वाले रोड शो में भाग लेना भी शामिल है। अपने
दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के दौरान शाम मंगलवार सुबह बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में शक्ति केंद्रीय प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर नेतृत्व और संगठनात्मक ताकत को मजबूत करना है। शाह क्षेत्र के लिए प्रमुख नीतिगत मामलों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए बेंगलुरु में भाजपा की कोर ग्रुप बैठक बुलाने वाले हैं। बाद में दिन में शाह कर्नाटक के रामनगर में चिकमंगलुरु से डीटी रामू सर्कल चन्नपटना तक एक रोड शो का नेतृत्व करेंगे, जिसमें नागरिकों के साथ बातचीत की जाएगी और सरकार की पहलों पर प्रकाश डाला जाएगा। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भीषण गर्मी के कारण पिछले 2 दिनों में बल्लारी जिले के 10 साल से कम उम्र के 20 से अधिक बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बल्लारी जिले में पिछले एक सप्ताह से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने चेतावनी दी है कि इस साल अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पिछले हफ्ते इसने बल्लारी जिले सहित पूरे उत्तरी कर्नाटक में हीटवेव की चेतावनी जारी की थी, जो सूखे के कारण तीव्र गर्मी का सामना कर रहा है। भर्ती बच्चे डिहाइड्रेशन, बुखार और उल्टी से पीड़ित पाए गए हैं। बल्लारी जिला प्रशासन ने दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया है, जिसमें नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों से दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक बिना सुरक्षा के सीधे धूप में न निकलने का अनुरोध किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.एच. मुनियप्पा ने कहा कि पार्टी को एक समझौता फार्मूला ढूंढना चाहिए था और आगामी लोकसभा चुनाव में कोलार सीट से चुनाव लड़ने के लिए एक स्थानीय व्यक्ति को चुनना चाहिए था। अपने दामाद को कोलार से टिकट नहीं दिए जाने से नाराज मुनियप्पा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाले 2 गुट अपने मतभेदों को सुलझाने में असमर्थ थे और इसीलिए उन्होंने तीसरा व्यक्ति सीट से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा, अला कामना ने टिकट दिया था, उन्होंने चिक्का पेद्दन्ना उनके दामाद के पक्ष में फैसला किया था, लेकिन चूंकि हमारे कोलार इकाई के बीच कुछ मतभेद थे, इसीलिए उन्होंने फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया था। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री मुनियप्पा ने कहा, वे इस मुद्दे को हल करने में असमर्थ रहे और उन्होंने तीसरे व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में चुना है। ऐसे समय में जब जिले का अधिकांश हिस्सा गर्मी की लहरों का सामना कर रहा है, विजयपुरा के कुछ गांव में शनिवार शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे खड़ी फसलें नष्ट हो गई और मवेशियों की जान चली गई। बारिश ने किसान मुरुगप्पा चौगला के 1 एकड़ से अधिक भूमि में लगे लगभग 100 केले के पौधे नष्ट कर दिए। जो किसान पहले से ही सूखे में अपनी फसल बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसे अब प्रकृति के एक अलग प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडी तालुके में उसके बागान उखड़ गए हैं। मुरुगप्पा का खेत इंडी तालुके के बोमनहल्ली गांव में स्थित था और उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए मूल्य के केले के बागान खो दिए। इंडी तालुके के हलगुना के गांव में लगभग 60 पेड़ और कुछ बिजली के खंभे गिर गए हैं। गांव में बिजली गिरने से एक किसान के 2 मवेशियों की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण किसानों के नींबू के बागानों को भी नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन बारिश से हुए कुल नुकसान का आकलन कर रहा है। खनन कारोबारी और कर्नाटक राज्य प्रगति पक्ष केआरपीपी के संस्थापक गली जनार्दन रेड्डी की भाजपा में वापसी से बेल्लारी और कोप्पल लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी को फिर से जीवंत करने में मदद मिल सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस घटनाक्रम से भाजपा के बेल्लारी उम्मीदवार बी श्रीरामुलु को रेड्डी के साथ मतभेद सुधारने में मदद मिल सकती है। एक समय करीबी सहयोगी रहे, हाल ही के दिनों में उनके संबंध अच्छे नहीं थे। पिछले साल के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद बदले हुए परिदृश्य ने भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है, जब वह 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 16 सीटों में से केवल 1 पर जीत हासिल करने में सफल रही थी। गंगावती से विधायक रेड्डी के पार्टी में शामिल होने से कोप्पल लोकसभा क्षेत्र के तहत विधानसभा में भगवा पार्टी की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में तेज धूप और बढ़ती से लोग परेशान। अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में दलित संगठनों ने की प्रेस
कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी की महिला उम्मीदवार से थाना बना सकती है। डीकेएस ने बयान की निंदा की। सीएम सचिवों का फर्जी पत्र बनाया, मामला दर्ज। अमित शाह कल कर्नाटक में अपने दिन भर के कार्यक्रम के दौरान रोड शो करेंगे। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।